بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام مہدی کون ہے اور یہ دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قوم آباد ہوئی اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے ان سبھی نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور ہم ان کی آخری امت ہے۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئیں گے اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی امت کہلائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراونا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیاں کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا، اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستوں، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ دوستوں، ان بڑی نشانیوں میں سے خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی، اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے، اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوستو، ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں سے بہت ساری نشانیاں
आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियां का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब यह ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी, और क़यामत की उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दुनिया में आना भी एक निशानी है। दोस्तों, इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना तय है, और जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा, और हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की उन जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वह हिजरत करके मुल्के शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगी। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो गरीब लोगों में माल और दौलत बांटकर उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वह आवाज लगाए कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वह मेरे पास आए, अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद ना होगा। दोस्तों, उस वक्त जब उस जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस जमाने में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे। तो वह लोग मकामे इब्राहिमी पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से माला माल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और जमीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस जमाने के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनाज और नेमतें देगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी और वह लोग इस जमीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने ना की होगी। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला
अन्हु इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी, तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को महफूज रखेगा। जबकि वलक्सर जुलालैफा के चट्टियल मैदान पर पहुंचेगा। दोस्तों, जुलालैफा एक जगह की नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वह फौज उस जगह पर पहुंचेगी, तब उनको जमीन में ढंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान ना पाएगा, और उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा कि वह हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज लगाने वाला ये आवाज लगाएगा और लोगों से यह कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद है। बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। यह लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदूले इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे, और जमीन के नीचे वाली चीजें जमीन के ऊपर वाली चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे, और फजर का वक्त होगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे, तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे, ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करें। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दोनों कांधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वह कुस्तिन दुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो रोम शहर को 4 तकबीरों के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों का कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूतें, सकीना और बनी इजराइल के दस्तरखान तख्तों का टुकड़ा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मेंबर और मनोसलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है और चौड़ाई 500 मील, और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीर को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाजों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से बहुत सारे माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहां से सारी चीजों को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब रोम और कुस्तुन
दुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये जमीन अपने अंदर छुपे हुए सारे खजानों को निकाल फेंकेंगी। दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस जमाने के अंदर जब लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु परिंदों को इशारा करेंगे तो वह परिंदे आकर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को घोड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ऐसा अंदलो इंसाफ कायम होगा कि उस जमाने में बकरी और भेड़िया एक साथ चढ़ेंगे। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम जंगे हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनका दुनिया में आना क्यों जरूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।